کے بال نہیں لگا سکتے، تو سور نجس العین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام محمد ساجد اتاری ہے. میرا نام محمد مراد الاتاری ہے. انشاءاللہ عز و جل میں مدنی مذاکرے میں مدنی کمپیوٹر بن کر شان امیر معاویہ پیش کروں گا. میرے بیٹے کی عمر 6 سال ہے. یہ مدرسۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہے. مدنی چینل کی ٹیم نے مدرسۃ المدینہ میں آڈیشن کیے اور میرے بیٹے کو مدنی کمپیوٹر کے لیے سلیکٹ کیا. یہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. مدنی چینل سے ہمیں مدنی کمپیوٹر کی تیاری کے لیے ایک اسکرپٹ فراہم کیا گیا. جہاں مدنی چینل میں ادن کی تیاری ٹرینر کروا رہے تھے، وہاں ساتھ ساتھ ہم نے بھی خوب محنت کی ادن کو تیاری کرانے میں. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارا بیٹا امیر اہل سنت کے سامنے پیش ہوگا اور مدنی کمپیوٹر بن کر شان امیر معاویہ بیان کرے گا. معاویہ کمپیوٹر. لبیک. ماشاءاللہ. بیٹا آپ کا نام؟ میرا نام محمد مراد الاتاری ہے. عمر؟ میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. اچھا معاویہ کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برتھ یعنی ولادت کب ہوئی؟ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آلموسٹ 604 سنہ عیسوی میں پیدا ہوئے. کاتب وحی صحابی نبی وہ ہے جنتی میرے معاویہ. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت اور مشہور ٹائٹل یعنی لقب بتائیے. آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور آپ کا لقب ناصر لحق اللہ یعنی اللہ کے حق کے مددگار ہے. ماشاءاللہ. یہ معاویہ کے نام کے کیا معنی ہے اور کتنے صحابہ کرام کا نام معاویہ تھا؟ معاویہ از a very beautiful name اور اس کی میننگ بہادر اور بلند آواز. 20 سے زائد صحابہ کرام کا نام معاویہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا دعا فرمائی؟ یا اللہ پاک معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا. آقا نے ان کو مہدی وعدی کی دی دعا، تا حشر جگمگائے گا وہ جلوہ ہدا. ہے رہبری پہ اب بھی منار معاویہ، اللہ اور رسول کے پیارے معاویہ. سبحان اللہ. اچھا معاویہ کمپیوٹر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کچھ خوبیاں کوالٹیز یہ بتائیے. آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، انصاف کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے اور لوگوں کی خدمت کرنے والے، اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے پیارے پیارے صحابی ہیں. عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ فیضان امیر معاویہ جاری رہے گا جاری رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی تیاری کر کے آئے ہیں آپ تو ماشاءاللہ. اچھا بیٹا آپ نے جو انگلیاں یوں رکھی ہیں کینچی ڈال کے، تو یہ نہیں رکھنا چاہیے.
हाँ, बिला जरूरत। इसका मसला ये है, पूरा हो जाए ना ये कंप्यूटर, इसके बाद अर्ज करता हूँ, या चलो अभी अर्ज कर दूं। हाँ, नमाज में या नमाज के इंतजार में, नमाज में या तवाबे नमाज में, जिनका ताल्लुक नमाज से है, जैसे नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है या मस्जिद घर से निकला नमाज की नियत से मस्जिद में आने के लिए जमात से नमाज पढ़ लूं, तो ये तवाबे नमाज की मिसालें हैं। तो नमाज में या तवाबे नमाज में उंगलियां कैची बनाना ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज है, गुनाह है। लोग इंतजार में जमात के बैठे रहते होंगे सफ में, और शायद ये करते होंगे, अक्सर नहीं करते हो लेकिन करते होंगे, आदतें हैं लोगों की, तो ये गुनाह है। अगर कभी किया जिंदगी में तो तौबा करनी होगी। और नमाज या तवाबे नमाज में नहीं है, वैसे ही किसी ने उंगलियां डाल ली हैं तो ये गुनाहगार नहीं है, लेकिन बचना बेहतर है। मकरूह तंजीही इसको कहा गया, पसंदीदा नहीं है, ये भी बचना चाहिए। और अगर किसी मजबूरी के तहत किया, कोई जरूरत है इसकी, इस वजह से किया, तो अब ये मकरूह तंजीही भी नहीं है। यही मसला उंगलियां चटखाने का, इस तरह चटखाते ना उंगलियां, इसके भी सेम मसाइल हैं। तो हाँ, मुआविया कंप्यूटर, ये तो बताइए कि हजरत अमीर मुआविया देखने में कैसे थे, यानी आपका कद मुबारक कितना था, आपका रंग मुबारक कैसा था? आप रज़ियल्लाहु अन्हु लंबे कद वाले थे और आपकी रंगत सफेद और खूबसूरत थी। सर और दाढ़ी मुबारक पर मेहंदी लगाया करते थे, इसीलिए आपकी दाढ़ी सोने की लगती थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी हदीसें रिवायत की? 163 अहदीस रिवायत की हैं। कहा है आदिल सिका मुहद्दिसीन नहीं है, हदीस में है मुस्तनद रिवायत मुआविया। कहा है आदिलो ज़का मुहद्दिसीन ने इन्हें, हदीस में है मुस्तनद रिवायात मुआविया। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आखिरी सवाल है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल शरीफ कब और कहाँ हुआ, और आपका मज़ार मुबारक कहाँ है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल 22 रजब को मुल्क शाम के फेमस सिटी दिमश्क में हुआ और इसी शहर में आपका मज़ार शरीफ है। फैजान अमीर मुआविया जारी रहेगा। खौइफे किबरिया हजरत मुआविया, आशिके मुस्तफा हजरत मुआविया, हजरत मुआविया, फातिमा हो भला हजरत मुआविया, हो करम हो करम हो अता हजरत मुआविया, बाखुदा बासफा हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, जन्नत और उम्र फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। जन्नती जन्नती। हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी के साथ आए आप, माशाअल्लाह। आवाज भी अच्छी है आपकी, माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत दे। अल्लाह करे कि उम्मत को आपकी सूरत में बहुत बड़ा आलिम दीन मिले, रहनुमा इस्लाम मिले, माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको भी, आपके वालिदैन को भी। आपके वालिद को चाहिए कि शुक्राने में कोई मदनी काफिले की नियत भेज दे, हो सके तो 1 माह की, वरना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के उर्स की निस्बत से 22
22 रजब को है ना आपका उर्स, 22 दिन का मदनी काफिला करना है, ये भी नहीं कर सकते तो 12 दिन का, नहीं तो कम से कम 3 दिन के मदनी काफिले में सफर की तो भेज दें कि रजब शरीफ में ही हो जाए 3 दिन का मदनी काफिला, और मुआविया कंप्यूटर को भी साथ ले जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह, हमारे इन मदनी मुन्ने को 2600 रुपए ये भी पेश किए जाएंगे और इनके वालिद साहब के लिए एक गिफ्ट बॉक्स जिसमें किताबें भी होंगी और वो भी इंशाअल्लाह उल करीम पेश किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, आज 18 रजब की रात है, 18वीं रात है, तो 22वीं शब जो है ये कब बनेगी? ये बुध और जुमेरात बनेगी ना? जी 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 हाँ, बुध और जुमेरात की दरमियानी रात इंशाअल्लाह सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का उर्स मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए भाइयों को चाहिए कि अपने अपने हलकों में मसाजिद में जरूर मतलब है कुछ न कुछ तरकीबें करें और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में बयानात वगैरह करें, जिनसे हो सके तो नियाज भी करें इस साल सवाब के लिए इंशाअल्लाह। कुछ न कुछ मदनी चैनल के यहाँ भी जो तरकीब हो ये ऐलान फरमा दें जी इंशाअल्लाह उल करीम। 8:45 बजे बरोज बुध 23 फरवरी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में महफिल नात का सिलसिला होगा और बयान भी होगा इसमें, और तिलावत नात के बाद जुलूस मुआविया, इसके मनाजिर भी इंशाअल्लाह उल करीम हम मदनी चैनल पर देखेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह उल करीम सुन्नत व बरा बयान होगा और 9:30 बजे जो है वो हम चूँकि उस दिन ज़हनी आजमाइश का भी बराह रास्त सिलसिला है तो मदनी चैनल के नाज़रीन जो है वो 9:30 बजे से फिर मदनी ज़हनी आजमाइश का सिलसिला देखेंगे और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इंशाअल्लाह उल करीम महफ़िल नात वगैरह का सिलसिला और आखिर में लंगर मुआविया का भी एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, जहाँ भी लंगर शरीफ करे ना, ये सब दुनिया भर में सुन लें आशिकान रसूल, ये खाना मस्जिद में ना खिलाया करें। मस्जिद में पकाना तो अगर दूर की बात है, ख्वाब में भी नहीं पकाना है। मस्जिद में जहाँ नमाज की जगह वहां थोड़ी पकाया जाता खाना, ना खीर पूरियां बनाई जा सकती हैं, बल्कि फिनाए मस्जिद में भी नहीं, मस्जिद की इमारत से बाहर किसी के घर पे ये पकाने पकोने की तरकीब कर लें। और खिलाने का जो भी है ना, वो बिल्कुल मस्जिद से बाहर जहाँ मतलब कि नमाज ना पढ़ी जाती हो वहां खिलाना है। ऐन मस्जिद जो है उसमें नहीं खिलाना पिलाना, क्योंकि दरिया खराब होंगी, कारपेट आलूद होंगे, और जहाँ फिनाए मस्जिद वगैरह में भी अगर खिलाते हैं तो उसकी अलग से खाने की दरी बिछानी है। नमाजों की दरियों पे नहीं खाना, आवाम जो है ना खाना गिराएगी, थाले रखेंगे, चिकनाहट होगी, शोर शराबा होगा। इसलिए फिनाए मस्जिद से भी मुमकिन हो तो बाहर ही खिलाए। तो मस्जिद इन कामों के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, मस्जिद है अल्लाह की इबादत के लिए। तो इसका तकद्दुस बिल्कुल बरकरार रखना है। हमारे फैज़ान मदीना में मस्जिद के अंदर ही खिलाते, बरसों से हमारा मामूल है, मस्जिद के अंदर नहीं। अड़ा उड़ी लोग करते हैं, अवाम होती है, अवाम कल अनआम, मुहावरा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं जो नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिले में हमें मौसूल हुए। तबर्रुक दिल ताबो जहाँ फिजा है, कूंडे का ये तबर्रुक दिल ताबो जहाँ फिजा है, दिल ताबो जहाँ फिजा है। ईमान की ज़िया है, ईमान की ज़िया है, हज़रत इमाम जाफ़र ईमान की ज़िया है, हज़रत इमाम जाफ़र वफा है, हज़रत इमाम जाफ़र हर सारे इत्तिफा है, हज़रत इमाम जाफ़र फैज़ान इमाम जाफ़र सादिक जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह।
जाफर सादिक जाफर सादिक जाफर सादिक जाफर हजरत इमाम जाफर सादिक जाफर हजरत इमाम जाफर सादिक जाफर करम से हम पर इमाम जाफर है साया गुस्तर इमाम जाफर हमें हो क्यों कर इमाम जाफर अदू का अब डर इमाम जाफर सखा के पैकर इमाम जाफर गरीब परवर इमाम जाफर हया के पैकर इमाम जाफर हमारे रहबर इमाम जाफर तू दूर दिलबर इमाम जाफर गमो अलम कर इमाम जाफर जाफर हजरत इमाम जाफर सादिक जाफर हजरत इमाम जाफर सादिक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह मदीने पाक की बातें हो रही हैं मदनी मुज़ाकरे में। क्या ही बेहतर हो कि अमीर सुन्नत की जनाब से एक नेकी की दावत उन आशिकान रसूल के लिए जो इस वक्त मदीने मुनव्वरा में हाजिर हैं या हाज़री की सादत पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर एक काश के वो एक मुट्ठी दाढ़ी की नीयत के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हों और ये तोहफ़ा लेकर बारगाह रिसालत में पहुँचे, तो ये अगर मुख्तसर सा मद्दी गुलदस्ता हो जाए, ये इसके अलावा और जो आप नेकी की दावत देना चाहें तो इनके मोबाइलों में पहुंच जाएगा इनके पास। तो क्या पता कि ये इंशाअल्लाह इस पर अमल कर लेंगे और बहुत बड़ी नेकी पाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या जब कि ये बारगाह रिसालत में इनका ये तोहफ़ा इनका ये अमल कबूल हो जाए और दुनिया आखिरत की भलाइयाँ मुक़द्दर हो जाएं। माशाअल्लाह जिन्होंने उम्रे का वीजा लगवा लिया है या लगवाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं या जो तड़प रखते हैं मदीने शरीफ की हाजिरी की और खुदा न खास्ता वो नमाज नहीं पढ़ते या नमाजों में कोताही या जमाअत में सुस्ती है, तो मेहरबानी करके वो अब तो सच्ची तौबा कर लें और नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। बा जमाअत नमाज की पाबंदी ज़हन से पहली सफ में तकबीर ऊला के साथ बा जमाअत नमाज मिला करे और दीगर गुनाहों से भी तौबा कर लें। खुदा न खास्ता दाढ़ी मुंडाते हैं या एक मुट्ठी से घटाते हैं, छोटी कर देते हैं काट के, ये भी दाढ़ी बढ़ा लें और तौबा भी करनी वाजिब है, तौबा भी कर लें, सच्ची तौबा कर लें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अंदाज पर हाजिर हों कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम बस हो जाए। यानी जो दाढ़ी मुंडा होता है ना, इस पर एक वाकया है, खुसरो परवेज का एक के दो एलची आए थे बारगाह रिसालत में, सफीर, उनकी दाढ़ी मुंडी हुई थी और मूंछें लंबी लंबी, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कराहियत का नापसंदीदी का बेजारी का इजहार किया था कि ऐसी शक्लें तुम्हें बनाने का किसने हुक्म दिया। तो वो कहने लगे कि क्यों, हमारे महबूद खुसरो परवेज ने इसका हुक्म दिया। ने खुसरो परवेज जो बादशाह था ईरान का, उसको ये अपना महबूद कहते थे, महबूद वो जिसकी इबादत की जाए। माज़अल्लाह देखा हमारे रब, हमारे महबूद, हमारे ये खुसरो परवेज ने हमको ये हुक्म दिया है। खैर, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने तो मुझे छोटी करने, पस्त करने और दाढ़ियों को माफ करने, माफी देने, इन्हें बढ़ाने का हुक्म दिया है। इस तरह की मतलब इरशाद फरमाया। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े के तहत इस तरह का कुछ इरशाद फरमाया फतह रज़विया में कि ए मुसलमान, तू सोच, तू गौर कर कि कल क़यामत में बारगाह रिसालत में पेश हुए बगैर चारा नहीं है, और ये भी है कि जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला उठेगा, दाढ़ी मुंडाने वाला इस हाल में उठेगा कि उसकी दाढ़ी मुंडी भी होगी। तो अव्वल तो बारगाह रिसालत में हाजिरी में शर्म आएगी, और अगर हाजिर हो गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां चेहरा फेर लिया, मुंह फेर लिया,
नागवारी का इजहार फरमा दिया कि ये चेहरा मैंने तुमको बनाने का कब कहा था। तो अब उस वक्त बताओ तुम पर क्या गुजरेगी। ये मैंने अपने अल्फाज के एडिशन के साथ दर्ज किया। तो इस तरह मतलब ये कि अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में बेजारी का इजहार कर देंगे तो फिर क्या करोगे, फिर किसके कदमों में लौटोगे, किसके दरवाजे पर खैरात शफाअत की खैरात लेने जाओगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मना फरमा दिया, इनकार फरमा दिया, कुछ हो गया वहां, तो फिर तो क्या होगा। किसी शायर ने कहा है, न उठ सकेगा क़यामत तलक खुदा की कसम कि जिसको तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। तो इसलिए जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, आशिकान रसूल हैं, वो उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। बहुत गौर करने वाली बात है कि ऐसा ना करें, हिले बहाने ना करें। ये है वो यूं हो जाएगा और नौकरी चली जाएगी, फुला चला जाएगा। यार कुछ भी नहीं जाता। जो रोजगार रोजी जो लिखी हुई है वही मिलेगी। एक दाना जो एक दाना जो आपने खाना है ना, उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, वो मिलकर रहेगा। तो इस तरह मतलब ये कि दाढ़ी बढ़ानी जरूरी है, ये बहाने नहीं चलेंगे क़यामत के दिन। इसलिए आप भी से तौबा करें और कम से कम एक मुट्ठी दाढ़ी बढ़ाने की पक्की नीयत कर लें। बहुत हो गया बस, अब तौबा कर लें। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता इसी हाल में मौत आ जाए और फिर पछताने का मौका है। अल्लाह ना करे, अल्लाह हमसे राजी हो, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो। हिम्मत कीजिए, नियत कीजिए। तो ये तो खुसूसन मैंने मदीने शरीफ की हाजिरी के लिए मतलब जो जा रहे हैं या जाने वाले हैं या पहुंचे हुए हैं समझो, या जो जाना चाहते हो, हर एक जाना चाहता है, उन सबको ये पैगाम या ये दरखास्त अर्ज की है। और जो नहीं जा पा रहे, ये दरखास्तें उनके लिए भी हैं कि क़यामत में तो सभी को शफाअत की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह और रसूल को राजी करना ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि उसके लिए कोशिश करे। इसलिए वो सारे के सारे मुसलमान जो हैं, जो आशिकान रसूल हैं, वो एक मुट्ठी तक दाढ़ी बढ़ाने की नियत करें। ये ठोड़ी के नीचे, यहां से बाद लोग नापते हैं और फिर ये बताते हैं हमारी मुट्ठी है। ये गलत है। ये जो बाल लटक रहे हैं, खाल हड्डी कुछ भी नहीं, हाथ में नहीं, ये गले की तरफ दबाएंगे ना, अब जो ये बाल लटक रहे हैं ना, अब इनसे नीचे जो बाल आएंगे ना, इनको एक मुट्ठी से ये जो बढ़ गए, अब इनको भले काट दें इसको, ठीक है ना, इससे पहले नहीं। बाद लोग ये खत में भी बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं। तो जो बाल ये देखो मेरी दाढ़ी जमी हुई है, ये उभरा हुआ हिस्सा, इसको ये ना गाल का हिस्सा, ये इसी से पर अगर बाल आ गए नहीं, ये जो एक इसकी लिमिट है, ये जहां तक बाल कुदरती जमे हुए हैं, इसके बाद कुछ रुवाड़े निकल आते हैं, रुएं जो अच्छे भी नहीं लग रहे होते, तो उनको भले आप साफ कर दें, बल्कि बुरे लगते हो तो काट भी देने चाहिए, साफ कर देने चाहिए। इसके अलावा ये जो कुदरती जो बना हुआ है ना मेरा, ये इसको जरूरत नहीं है छेड़ने की। तो बाद लोग खामा इसको यूं गहरे चले जाते हैं। तो ये भी दाढ़ी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। इस तरह बाद लोग होंठों के नीचे ये इधर ये साफ कर लेते हैं, ये भी नाजायज है। होंठों के नीचे जो है ना, ये भी सारी दाढ़ी है, ये पूरे गाल जो है सब दाढ़ी इसमें जमी हुई है, तो छेड़ना नहीं। एक बाल भी एक मुट्ठी होने से पहले नीलानी, और लेना भी है तो एक मुट्ठी के बाद जो निकला वो लेना है। एक मुट्ठी होगी तो अभी आप समझो कि इसमें तराश खराश कर दो और यूं लटकी हुई रख दो कि मेरी एक मुट्ठी है, पर यहां से जो काटा इसका क्या, ये कुछ नहीं करने का। सबसे तौबा करें और बिल्कुल पूरी दाढ़ी रखो और मिठे मुस्तफा की पसंद की रखो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे भी तौबा करें, ये भी जायज नहीं है। ये जो मैंने बताया ना, बुच्ची दाढ़ी या बच्ची दाढ़ी, यानी कि बच्ची बोलते हैं इसको या बुच्ची बोलते हैं, होंठों के नीचे, इसको भी छेड़ना नहीं है, कहीं से भी इसको काटना नहीं है।
हाँ 2-4 बाल हैं ऐसे जो मुंह में फंस आ जाते हैं खाने में, या यूं कुछ यानी कि रुकावट बन रहे, तो अब ये वो जो 2-4 बाल वो आपको अटक रहे हैं, तो इनको भले काट सकते हैं नीचे के जो होंठों के नीचे। इसके अलावा जो खामा लोगों ने आदत बनाई हुई है, ये सब तौबा करें और इसको बढ़ा लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के जरिए सवाल है कि क्या नमाज जनाजा में सलाम फेरना फर्ज होता है? 4 तकबीरें और क़याम यानी खड़ा होना, ये इसमें रुकन जनाजे के ये फर्ज हैं। बाकी जो दुआएं पढ़ना, दुआ पढ़ना या सलाम फेरना वगैरह, ये सब सुन्नत हैं, हाथ बांधना। नमाज में सजदा करना भूल जाएं तो क्या हुक्म होगा, इरशाद फरमा दें। नमाज हर रकात में 2 सजदे फर्ज हैं। अगर सजदा एक रह गया, जैसे एक भी रह गया और नमाज पूरी कर ली, तो ये नमाज हुई नहीं, दोबारा पढ़नी होगी। और अगर दौरान नमाज याद आ गया कि भाई मेरा सजदा एक रह गया, तो अब सलाम फिरने से पहले ये सजदा कर ले। भले किसी और रकात में 2 सजदों की जगह 3 कर ले सजदे। तो इस तरह मतलब है कि इसके सजदे का फर्ज तो नमाज के अंदर अदा हो गया। अब चूंकि फर्ज में ताखीर हो गई ना, और ये गलती से हुआ था, तो अब ये कि सजदे सहव कर ले। जानबूझकर अगर छोड़ा था तो अगर बाद में कर भी लिया सजदा, तो नमाज तो मकरूह तेरी में हो जाएगी कि बिला वजह इसने जानबूझ के ताखीर की ना। तो अब सजदे सहव से इसकी तलाफी नहीं होगी, इसका नुकसान पूरा नहीं होगा, नए सिरे से नमाज पढ़ना वाजिब होगा। जबकि वो अंदर में सजदे कर लिए पूरे, हर रकात 2 सजदे ये फर्ज है। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। कैसी सुनाई गिनती? सही नहीं सुनाई? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 4 8 10 कहाँ चला गया। असल में आज कुछ बात करनी है ताक यानी ऑड नंबर्स पर, और उससे मुतालिक हजरत से कुछ कंफर्मेशन लेंगे कि बास कारोबारी अफराद के नज़दीक ताक यानी ऑड नंबर्स मसलन 1 3 5 7 9, इन नंबर्स को कारोबारी हजरात अपने लेन देन और कारोबारी मामलात के लिए अच्छा नहीं समझते, और हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सौदा और अमाउंट का लेन देन हो, तो उसमें जो भी अदायगी अमाउंट और रकम की सूरत में हो, तो उसका जो आखिरी अदद हो वो ऑड यानी ताक अदद ना हो। हम हमारे हजरत से पूछना चाहेंगे, आपने बहुत सारे बिजनेस किए हैं, तो क्या ये ऑड नंबर्स जो हैं, ताक आदात जो हैं, इसमें अगर रकम की लेन देन या वसूली की जाए या दिए जाए पैसे, तो क्या इससे बिजनेस का कोई ताल्लुक है? क्या ये ऑड नंबर्स बिजनेस के मामलात पर असरअंदाज हो सकते हैं? प्लीज हमें बताइए, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? अल्लाह अल्लाह, ओड नंबर बुरा नहीं है, अल्लाह एक है। हदीस पाक में अल्लाह वित्रुम व युहिब्बुल वित्र, कि अल्लाह वित्र है और वित्र को पसंद करता है। वित्र का इंग्लिश गालिबन ओड बनेगा। जी सही है। तो अल्लाह एक है ना, ओड बनेगा। तो ये अल्लाह ताला ओड को, वित्र को पसंद करता है। तो जब अल्लाह पाक ने पसंद कर लिया, हदीस पाक में आ गया, तो उस चीज में कोई खराबी हो ही नहीं सकती। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो खाने के मौके पर भी इसका ख्याल रखने का इरशाद फरमाया कि जब जैसे मसलन खजूरें खाए तो 3 1 3 5 7 9 11 इस तरह इस ओड में खाए, ताकि इसमें वहदानियत का तस्वुर रहे। ये इमाम गजाली
کا فلسفہ عرض کر رہا ہوں. یہ کوشش کریں. تو اب جیسے ہم پانی پیتے ہوئے 3 گھونٹ میں نا، نماز میں وتر ہے وہ بھی 3 رکعتیں ہیں. تو یوں مطلب ہے کہ 3 کو یا 1 کو یا اوڈ کو، یہ مطلب مسلمانوں کا نہیں ہے ایسا معاملہ کہ بدشگونی اسلام میں جائز